Voice is lagging. Is it clear now? Yes, sir. Are you able to see the file, Scilab ka file? Yes, sir. Okay. So see, in practicals of discrete maths, we'll be learning about the Scilab. It is basically a programming language which is related to the mathematical part. Okay, just like you have your C programming, you would have heard about your Java programming, right? So similar to that, you have Scilab. Scilab is basically developed for solving the mathematical problems. So here you can find the roots of an equation, you can find the factors of a number, you can find the factors of a polynomial, you can find the remainder, you can find the quotient. Okay, lots and lots of many things which you observe or which you think related to your mathematics that you can do in Scilab very easily. The question that would be arising in your mind is, if we are solving the problems manually with the formulas which we have, then what is the need of this Scilab? Answer for that is, see, there are many polynomials also for which finding the roots is not an easy task. Okay, for which finding the roots is not an easy task. Say for example, x cube plus x square plus uh, x plus 1. Okay, x cube plus x square plus x plus 1. If this is a polynomial, then it is not an easy task to find the roots of this polynomial, because for your level, I'll be specific to your level. See, for finding the roots of a polynomial, how many methods you know? Suppose if you have a quadratic equation, how do you find the roots of a polynomial? You know the factorization method, right? Then you know that discriminant wala formula, minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. These are the two most common formulas which we use for finding the roots of a quadratic equation. Now when you go to the cubic polynomial, cubic polynomial के लिए we know the method of factorization, we know the method of synthetic division. Most of you would be knowing about the synthetic division, and there would be many who would be knowing but would have forgotten the synthetic division, right? If I ask them out of 43, see, there would be at least 15 students in the class today who would have forgotten how to find the roots of a polynomial using the synthetic division. So for a cubic polynomial, this is what are the methods, basic methods which we know for finding the roots of a polynomial. But as your degree of the polynomial increases, say if your degree becomes 4, 5, 6, the things becomes much more complicated. And second thing, every method has its own advantage and has its own disadvantage. Now say for example, if you consider the synthetic division, okay, if you consider your synthetic division, we are talking about a cubic polynomial. Okay, before that we will discuss about a quadratic equation. Now, if you have a quadratic equation, that means you will have two roots, right? For a quadratic polynomial or for a polynomial of degree 2, you can have maximum two roots. Can anyone tell me what would be the nature of these two roots? Nature means, are the roots real, imaginary? क्या दोनों रियल है, दोनों इमेजिनरी है कि कैसा है? एक रियल है, एक इमेजिनरी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट एग्जिस्ट ही नहीं होता है? So nature means the type of the roots which you have. As we discussed, it's a quadratic polynomial, so maximum you can have two roots. Okay, now what would be the nature of the roots? Can anyone tell? Real. Real means both real or one real, one imaginary? Both real, sir.
Okay, both the roots can be real. Okay, this is one possibility. Now, real may be, if you go in detail, then you will have either both the roots are same or both the roots are different. So, for example, if you have a polynomial x square plus 2x plus 1, x square plus 2x plus 1, what would be the roots of this polynomial? Again, I repeat the polynomial x square plus 2x plus 1. इसका रूट्स क्या होगा? -2 -1. How do you reach to that conclusion? Sir, after solving Okay, which method? factorization. Factorization. When you said -2 -1, right? Yes, sir. Okay, अगर -2 मेरा रूट है तो उसका फैक्टर क्या होगा? If मतलब -2 is my root, उसका फैक्टर क्या होगा? so I didn't got you. You are telling -2 and -1 are the roots of the polynomial x square plus 2x plus 1, correct? Yes, sir. ओके, अभी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अगर फैक्टराइज किया तो उसका फैक्टर्स क्या आएगा, वो मैं पूछ रहा हूँ. सर मैं फैक्टर्स ही बोल रहा हूँ सर. x could be -2 और x could be -1 सर. हाँ, तो वो तो रूट्स हो गया ना मेरा. Yes, sir. -2 एंड -1 मेरा रूट्स हो गया, राइट? करेक्ट. Yes, sir. तो अगर -2 और -1 मेरा रूट्स है एंड यू सेड कि तुमने फैक्टराइजेशन का टेक्निक अप्लाई किया, तो पहले फैक्टर्स मिलेगा, बाद में ही रूट्स मिलेगा ना. हाँ सर. हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, तो वो फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स कौन से हैं? 2 and 1 सर. 2 एंड 1 फैक्टर कैसे हुआ? x plus 2 and x plus 1. हाँ, x प्लस 2 एंड हाँ x हाँ प्लस 1 उसका फैक्टर्स हो गया, करेक्ट? यस सर. ओके. अच्छा, अभी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आता है. Equation कौन सा इक्वेशन आता है? which you gave. चेक करो. x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 तो मल्टीप्लाई करके चेक करो, वो इक्वेशन आता है जो मैंने दिया था. यस सर. आता है. x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता है. No sir. तो क्या आता है? X square plus 3x plus 2. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट. इसके लिए यही तो रीजन था मैंने तुम लोग को पूछा करके, बिकॉज द रूट विच वेर गिवन आर नॉट द करेक्ट वन. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का रूट है x इक्वल टू -1 विच इज रिपीटेड 2 टाइम्स, बिकॉज दैट इज नथिंग बट द पॉलिनोमियल x प्लस 1 द होल स्क्वायर. Okay, x square plus 2x plus 1 is nothing but x plus 1 the whole square. तो मेरा जो रूट्स आता है वो है -1 which is repeated 2 times. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग विच आई वांटेड टू टेल, वो तुम लोग ने ही बोल दिया. x plus 2 and x plus 1, x plus 2 and x plus 1 are the factors of the polynomial x square plus 3x plus 2.
Okay, x square plus 3x plus 2 का factors are x plus 2 and x plus 1. That means उसका जो roots है they are -1 and -2. x square plus 3x plus 2 का factors are x plus 2 and x plus 1 and उसका जो roots है they are x equal to -1 and x equal to -2. Okay, so these two examples tells us that both these examples have real roots, but what is the difference between the nature of the roots? X square plus 2x plus 1 में roots are real, but the roots are repeated. तुम्हारा -1 जो रूट है वो 2 बार अपीयर हो रहा है, that is why it is said to be a repeated root. X square plus 3x plus 2. Here also you have real roots, but here the roots are distinct. दोनों roots अलग अलग है, एक तुम लोग x1 ले सकते हैं, एक तुम लोग x2 ले सकते हैं. Is this clear? Yes, sir. So we have polynomials जहाँ पे you have real roots where the roots are repeated or the roots are distinct. Okay, ये तो हो गया दो real root का possibility because we are considering on a case of a quadratic equation only. Fine. Now anyone can tell ये तो दो types हो गया अपना, एक हो गया real root. Real root में दो option मिल गया, roots are repeated और roots are distinct. अभी इमेजिनरी और कौन सा पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं? कैन एनीवन टेल? कैन बोथ द रूट्स बी इमेजिनरी? कैन बोथ द रूट्स बी इमेजिनरी? ओके, अगर सपोज तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इसका रूट्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका रूट्स क्या होगा? -1 root. -1 Root of -1, that is I. ओके ओके, तो एक ही रूट मिलेगा कि दो रूट मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? एक ही रूट मिलेगा. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो रूट मिलना चाहिए ना. और यू मीन वांट टू से कि आई विल बी रिपीटेड 2 टाइम्स? Plus or minus under root -1. Plus minus square root of -1, that is nothing but plus minus I. Square root of -1 is I. So x square plus 1 equals to 0 has two imaginary roots, and the roots are plus I and minus I, where I is nothing but square root of -1. ठीक है? ओके, तो ये हो गया मेरा दो रियल रूट, दो इमेजिनरी रूट. नाउ कैन यू हैव वन रियल एंड वन इमेजिनरी? कैन यू हैव वन रियल रूट एंड वन इमेजिनरी रूट? Yes, anyone? Can you have one real root and one imaginary root?
We have seen the cases whether both the roots are real or both the roots are imaginary. Now the question is, can you have one real root and one imaginary root? No idea, sir. Okay, the answer is you cannot have one real and one imaginary root. The reason is your imaginary roots, they always appear in conjugate pairs. Okay, again I repeat, you cannot have one real and one imaginary root for a quadratic polynomial because your imaginary roots, they always appear in conjugate pairs. That means if a plus ib is a root, then a minus ib will be a root. Okay, a plus ib is a root, then a minus ib will also be a root. Just like a few minutes back you said the answer for x square plus 1, उसका रूट मिला प्लस माइनस आई, आई का कॉन्जुगेट इज माइनस आई. Okay, I का conjugate is minus I. So you get your imaginary roots appearing in conjugate pairs. That means अगर एक imaginary root हुआ तो उसका conjugate will always be a root of the polynomial. ठीक है, उसका conjugate will always be a root of that polynomial. That is why it's very important to remember that your imaginary roots, they always appear in conjugate pairs. In very simple words, it says that कोई भी polynomial में खाली एक imaginary root नहीं हो सकता. This is very important. कोई भी polynomial में खाली एक imaginary root नहीं हो सकता है. ठीक है, ये तो हो Yes, गया sir. अपना quadratic equation का. Now if we go to a cubic polynomial, then we know that there will be three roots, right? We had discussed the methods also to find the roots. एक synthetic division discuss किया, एक factorization discuss किया. Synthetic division detail में discuss नहीं किया because वो तुम लोग ने already school days में किया हुआ है. Now if you have a cubic polynomial, what would be the nature of the roots or what type of the roots you can have? Anyone? अभी सबसे पहला इसमें कितना रूट्स होगा? 3 रूट्स होगा. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 3 रूट्स होगा. यू कैन हैव 3 रूट्स. नाउ व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ दिस 3 रूट्स? कैन एनीवन टेल? नेचर मींस रियल एंड इमेजिनरी हो सकता है. आई वांट द आंसर इन डिटेल. कितना रियल हो सकता है, कितना इमेजिनरी हो सकता है? Yes, for a cubic polynomial, you can have maximum 3 roots. What would be the nature of the roots? This all things what we are discussing today, you have to remember. Don't think कि वो हमने प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था तो थियरी लेक्चर में उसका क्या यूज होगा करके, या थियरी लेक्चर में हम लोग क्यों याद रखें. This is what you have learned in your school days. You should be able to answer quickly. But the things are different. Okay, doesn't matter. We will, wherever it is required, we will try to develop the base. But it should not happen कि बेस डेवलप किया तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आते आते ये भूल गया करके. This all things you have to remember. Yes, sir. Because it is not like when you are trying to construct a building, तो हर बार खाली ग्राउंड फ्लोर. आज सपोज
इमेजिन कि 2 दिन में तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर का काम हो जाता है करके, तो इट्स लाइक 2 दिन तुमने लेबर को लगाया, ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट किया, फिर थर्ड डे से अगेन, थर्ड डे तो ठीक है, 4 दिन तुम्हारा लेबर नहीं आया, 4 दिन तुम नहीं आया, फॉर 8 days the work on the site was closed. 9th day again you and your labor comes और वापिस से ग्राउंड फ्लोर से चालू करेगा। वैसा नहीं होना चाहिए। वो दो ग्राउंड फ्लोर बंद किया तो 9 दिन के बाद आओ कि 90 डेज के बाद आओ, फिर तुमको फर्स्ट फ्लोर का काम करना है, बिकॉज योर बेस हैज बीन डेवलप्ड। तो हियर आल्सो यू हैव टू डू द सेम थिंग। अभी बेस डेवलप करो और वो बेस को डेवलप करके रखना है एटलीस्ट टिल योर टी वाई गेट्स कंप्लीटेड, नॉट टी वाई तो ठीक है, एटलीस्ट योर एस वाई गेट्स कंप्लीटेड, बिकॉज आफ्टर एस वाई I will not be taking your lecture, so frankly speaking I will be not concerned. This is my this thing, but from your point of view it would be better कि एक बार बेस बना लिया तो उसको तुम लोग याद रखो करके, ठीक है? उसको भूल जाएगा हर बार तो it will create a problem, and the problem will be created by you, it will be created for you, and how to get the solution, you will not be able to answer that question. Okay, so we were discussing about a cubic polynomial. So cubic polynomial, as we discussed, can have maximum 3 roots. Regarding the nature of the roots, all 3 roots can be real. Okay, all 3 roots can be real. अभी वो real roots में you have different possibilities. All 3 roots are same. Okay, or the roots are repeated. रूट्स आर रिपीटेड। अभी रिपीटेड रूट्स में भी हो सकते हैं कि एक ही रूट है जो 3 बार रिपीट हो रहा है, या एक रूट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है और एक रूट रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल you can have maximum 3 roots, and what would be the nature of the roots? All 3 roots can be real. Real में you can have one root which is repeated 3 times, or you can have one root which is repeated 2 times and the second root, second मतलब basically third root जो अलग है, जो एक ही बार repeat हो रहा है। Okay, another possibility is you can have one real root and 2 imaginary roots. Okay, you can have one real root and 2 imaginary roots. That is very well possible. You cannot have 2 real roots and 1 imaginary root. Okay, again I repeat, you cannot have 2 real roots and 1 imaginary root. The reason, few minutes back we discussed that your imaginary roots, they appear in conjugate pair. Okay, imaginary roots appear in conjugate pairs. So for a cubic polynomial, you cannot have 2 real and 1 imaginary, neither you can have all 3 as imaginary. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो दैट विल अश्योर यू कि उसमें एक रियल रूट तो है करके, ठीक है? दैट विल अश्योर यू कि उसमें एक रियल रूट तो है। टिल दिस द थिंग्स आर क्लियर? Yes, sir. Okay, now we will go with a 4th degree polynomial and then we will come to the Scilab का part, because you would be wondering कि Scilab का प्रैक्टिकल्स है और हम लोग यहाँ पे मैथ्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दिस, नहीं तो जो Scilab हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं वो पता ही नहीं चलेगा करके। फाइन, सो वी गो टू अ 4th degree polynomial. 4th degree polynomial can have maximum how many roots? Tell me. A 4th degree polynomial can have maximum how many roots? 4. It will have 4 roots at most. Now, what would be the nature of the roots? Nature of the roots would be like all 4 roots are real.
ठीक है, all four roots are real. Now all four are real में all four can be same. One can be repeated 3 times, one can be repeated 2 times. All such different permutations and combinations are valid for the real roots. Second possibility is all the four roots can be imaginary. Okay, all the four roots can be imaginary. Because as we discussed, imaginary roots they appear in conjugate pairs. So उसके accordingly we have this. There can be all four roots to be real, all four can be imaginary, two roots can be real and two roots can be imaginary. Okay, but you cannot have 3 real roots and 1 imaginary root. Okay, again I repeat, you cannot have 3 real roots and 1 imaginary root, nor you can have 3 imaginary roots and 1 real root. Okay, this is for your 4th degree polynomial. So see, when you have a polynomial of even degree, or say when you have a polynomial of odd degree polynomial के लिए there will be at least one real root always. ठीक है, odd degree polynomial के लिए there will be at least one real root always. Why? The simple reason your imaginary roots are appearing in conjugate pairs. मतलब imaginary root होगा तो 2 होगा, 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो continue. So remember, for a polynomial of odd degree, you will always have one real root. Okay, you will always have at least one real root. But the same thing cannot be said for a polynomial of even degree. Okay, the same thing cannot be said for a polynomial of even degree, because as we discussed polynomial of even degree में all four roots can be imaginary. Okay, all four roots can be imaginary. So even degree polynomial के लिए there may not exist a real root. So now the disadvantage of your synthetic division method. First disadvantage is using your synthetic division you can only find your real roots. Okay, you cannot find your imaginary roots using the synthetic division. That means whenever you have a even degree polynomial, it may happen कि उसका रियल रूट है ही नहीं. ठीक है, इट मे हैपन कि उसका रियल रूट है ही नहीं. तो इन दैट केस ऑल द रूट्स आर इमेजिनरी. बट वो सिंथेटिक डिवीजन से इतना लंबा करने के बाद अगर कंक्लूड करना है कि उसका रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होता है, देन इट इज क्वाइट अ टीडियस जॉब. So this is the first drawback or the limitation of your synthetic division. Okay, if you have a even degree polynomial, there is no guarantee that you will get a root. Clear? Yes, sir. But it doesn't mean कि उसका रूट्स ही नहीं है ना. Suppose I have a 4th degree polynomial जिसका रूट्स सब इमेजिनरी है. इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि उसका रूट्स नहीं एग्जिस्ट होता है. तो उसका रूट्स कैसे फाइंड करना है? एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, बट दैट आल्सो रिक्वायर्स सम स्किल्स. और दूसरा है कि तुम ऐसा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको यूज करो तो यू विल गेट द थिंग्स
in an easy and a quick way. ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं कि तुम्हारा साइलैब का यूज क्या है. It can be used for finding the roots of a even degree polynomial. Now when we say even degree polynomial, okay, when we say even degree polynomial, that does not mean कि वो हमेशा सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व होगा. उसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके फाइन. तो ये मेन एक रीजन जो तुम लोग बोल सकते हैं फॉर यूजिंग योर साइलैब. ओके, अनदर थिंग इज इट इज सिमिलर. You can say कि you can use it as a calculator also. Why people use calculators? Tell me. Everyone knows 3 into 2 कितना होता है, 15 into 5 कितना होता है, right? Then why people use the calculator? To save time. To save time, क्योंकि it calculates in a quick way manner. एक कैलकुलेटर हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, दूसरा तुम्हारा साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया. It is a type of a calculator. So calculator is a tool which helps you to perform the calculations easily. Now एक कैलकुलेटर में क्या होता है? Can you tell me? एक नॉर्मल 10 डिजिट का कैलकुलेटर जो है उसमें क्या होता है? बेसिक कैलकुलेटर आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत बार यूज किया है और करेगा करके. उसके अंदर ऐसा एल्गोरिथम बना है जो हम लोग से वैल्यूज लेता है और अपने को ऑपरेट करके देता है. ओके, तो तुम लोग से वैल्यूज लेता है और वो उसको कैलकुलेट करके देता है करके. नाउ सपोज वो तुम्हारा कैलकुलेटर पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, एस्ट्रिक होता है या तो क्रॉस होता है, राइट? सो हाउ दैट कैलकुलेटर नोस कि अगर ये बटन दबाए तो मेरे को ऐड करना है या ये बटन दबाए तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है. It's programmed. राइट. सो एवरी बटन हैज बीन प्रोग्राम. जो तुम लोग प्रेस करेगा उस अकॉर्डिंगली वो उसमें एक चिप होता है, आईसी होता है. अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर का बात किया तो आईसी होता है. वो उसको जाके इंस्ट्रक्ट करेगा कि अगर अच्छा अभी ये स्विच प्रेस हुआ तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ये स्विच प्रेस किया तो मेरे को ऐड करना है, एंड लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स. जैसा तुम्हारा मोबाइल फोन भी होता है, एंड्रॉइड वाला ले लो या आईफोन ले लो, राइट? ओके, तो Scilab is also of a similar type. You can program the things, you can save the file, just like what you can do it in your C program, similar to that. उसको आज तुम प्रोग्राम टाइप करो, एग्जीक्यूट करो एक सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, उसको सेव करके रखो, 15 दिन के बाद वापस उसको एग्जीक्यूट करो, इट्स फाइन, इट विल वर्क. क्योंकि यहाँ पे यू हैव ऑप्शन टू सेव योर कोड, टू सेव योर डेटा. ठीक है, so first I'll go to that Scilab cut this thing. Now this is what is a Scilab window. जहाँ पे cursor blink हो रहा है, that is what is known as a Scilab console. ठीक है, जहाँ पे cursor blink हो रहा है, that is what is known as a Scilab console. Now what is this console? And I'll tell you what is the difference. Okay, अभी जहाँ पे cursor blink हो रहा है, that is what is a console. At present, you remember that. फिर ऊपर मेनू है. See, you have a menu जहाँ पे you can see the option of file. ये फाइल पे क्लिक किया तो you get various options. Similar, not the options which are similar to one which you get it in your Word or Excel, but the menu is similar to what you have it in your Word or in Excel. This thing. So we have file का menu, we have edit, control, applications,
and this question mark. ठीक है, edit में you have your basic tools of cut, copy, paste, select. यहाँ पे you also have a clear console, clear history. clear history मतलब वो तुम्हारा मेमोरी क्लियर कर देता है. ठीक है, जैसे हम लोग ये मोबाइल में भी गूगल क्रोम का ब्राउजर वगैरह यूज करते हैं या कंप्यूटर में भी ब्राउजर वगैरह यूज करते हैं, तो यू वुड बी नोइंग कि अगर तुमने उसका हिस्ट्री क्लियर नहीं किया तो तुमने 4 दिन पहले क्या सर्च किया था वो गूगल क्रोम में इन योर डिवाइस, वो तुमको 4 दिन के बाद भी मिलेगा करके. 4 दिन के बाद डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग ऑफ योर डिवाइस, राइट. बट अगर तुमने Yes. आज कुछ सर्च किया, आज ही उसको क्लियर कर दिया, तो वो तुम्हारा डिवाइस से डिलीट हो जाता है, वो हिस्ट्री तुम्हारा डिवाइस से डिलीट हो जाता है. दैट इज व्हाट यू से ना कि क्लियर हिस्ट्री किया करके. प्रेफरेंसेस में व्हाट यू हैव इज यू कैन चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट. ठीक है, आर यू एबल टू सी दैट साइलैब का प्रेफरेंस का विंडो? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे यू कैन सी देयर आर डिफरेंट ऑप्शन. जनरल है, वेब है, प्रेफरेंसेस है, फॉन्ट्स है, कलर है, कंसोल, कमांड हिस्ट्री, साइन नोट्स एंड एक्सकॉस. इसमें से व्हाट वी विल बी इंटरेस्टेड इन ओनली फॉन्ट्स एट दिस मोमेंट. ठीक है, बाकी तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये फॉन्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो फॉन्ट साइज है, जो साइन नोट्स, आई विल टेल यू व्हाट इज योर साइन नोट्स, उसमें तुम लोग उसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, या कंसोल में तुम लोग उसका फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट इज योर साइलैब का प्रेफरेंस. तो आई बेसिकली यूज फॉर चेंजिंग द फॉन्ट साइज, बिकॉज बाकी सब में इतना मेरे को जरूरत नहीं पड़ता है. This is much more user friendly compared to your other programming languages and compared to your normal mathematical things which you write it in your notebooks. Compared to that, it is very user friendly. So ये हो गया एक मेरा कंसोल का पार्ट. नाउ सी, ये मेनूज के नीचे एक टास्क बार है where you can see the various options. First is your launch sign notes, open a file, cut, copy, paste. ये जो ब्रश जैसा दिख रहा है, that is for your clear console. Print, Scilab preferences. तो जो मेरे को मेनूज में ऑप्शन था वो मेरे को यहाँ पे भी है. ओके, हेल्प ब्राउजर एंड अदर्स. तो जो मेरे मेनूज में ऑप्शन है वो नीचे यहाँ पे टास्क बार में भी दिए हुए हैं. Then if you go to your file option, you can see you can open a file. Open a file means existing file. अगर नया ओपन करना है तो यहाँ से तुम लोग क्लिक कर सकते हैं लॉन्च साइन नोट. लॉन्च साइन नोट किया तो एक ये टाइप का फाइल ओपन होता है. आर यू एबल टू सी द साइन नोट्स का थिंग, और कंसोल ही दिख रहा है तुम लोग को? सर कंसोल ही दिख रहा है. कंसोल ही दिख रहा है. एक मिनट. I had that doubt क्योंकि मैंने एक फाइल को शेयर किया था. Now I have shared the whole screen. At present, are you able to see the Teams का screen? Yes, sir. Okay. Now, okay. Fine. Now are you able to see that Scilab का console? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Fine. Now see, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो बुक और पेन का जो नोटेशन है, वहां पे इफ आई टेक माई माउस पॉइंटर, देन नीचे मेरे को लॉन्च साइन नोट्स करके आ रहा है. आर यू एबल टू सी दैट? Yes, sir. ओके, सो इफ आई क्लिक ऑन दैट, यू विल सी कि मेरा एक फाइल ओपन हो गया. सिमिलर टू माई वर्ड फाइल, यू कैन से, जैसे मेरा एक वर्ड का फाइल ओपन होता है, फाइल में जाके फिर न्यू पे क्लिक करूंगा तो ऐसा मेरा एक फाइल ओपन हो गया. दिस फाइल इज बेसिकली नोन एज योर साइन नोट्स. ठीक है, साइन नोट्स मतलब इट इज बेसिकली अ टेक्सचुअल फाइल रिलेटेड टू योर Scilab.
ठीक है, साइनोट्स इज बेसिकली अ टेक्सचुअल फाइल रिलेटेड टू योर साइलैब। तो ये टेक्सचुअल फाइल क्या होता है? ये टेक्सचुअल फाइल मतलब यहाँ पे तुम लोग तुम्हारा कोड लिख सकते हैं। दिस इज ओके, यहाँ पे तुम लोग तुम्हारा कोड लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोड को लिख के उसको सेव करना है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। यू कैन सी दिस प्ले का बटन। ओके, Yes, प्ले sir. का बटन पे क्लिक करेगा तो तुम्हारा फाइल एग्जीक्यूट होएगा। एग्जीक्यूट मतलब तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज में वो कंपाइल करके उसको रन करेगा। ठीक है, कंपाइल करके उसको रन करेगा। सी बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, इतना बेसिक्स तो तुम्हारा हो गया है ना सी लैंग्वेज में, कि फाइल को कैसा कंपाइल करना है, फाइल को कैसा रन करना है, कि नहीं Yes, हुआ है sir. वो? नहीं हो गया सर वो सब। नहीं, why I'm asking because when I am referring to that part, तो it should not happen कि वो पार्ट कवर नहीं हुआ है और फिर ये भी ऊपर से चले जाएगा करके। तो whenever I give the reference of your C programming, just let me tell me हाँ कि ये सर ये हुआ है नहीं है करके। अगर कुछ ऐसा कुछ पार्ट है जो वहाँ पे कवर नहीं हुआ है तो you can tell me, because generally what happens कि before I start with my this Scilab का thing, वो C programming में that IP में all that compiling, run, executing, everything gets completed. So I prefer कि as I have told you during the lectures also, कि you remember the things with the help of the references, it becomes easy. क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी मेन थिंग क्या है? मेन थिंग तो कॉमन होता है, दैट इज द लॉजिक। जो है वो प्रोग्राम लिखने के लिए जो लॉजिक चाहिए वो तो किसी भी लैंग्वेज में लिखो, लॉजिक तो सेम ही होता है। लैंग्वेज टू लैंग्वेज व्हाट थिंग्स चेंजेस इज द सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज चेंजेस। बस जैसा अपना इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, इफ आई वांट टू राइट हाउ आर यू, हाउ आर यू का मीनिंग क्या होता है? कैसा है, राइट? तो वो तुम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, मराठी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अपना मदर टंग में भी लिख सकते हैं, करेक्ट? तो क्या अगर मेरे को लिखना है कि ओके 1 मिनट, सी मेरे को अगर लिखना है करण इज अ गुड स्टूडेंट। ओके, करण इज अ गुड स्टूडेंट अभी तुम्हारे क्लास में है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, तो उसको तुम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं करण इज अ गुड स्टूडेंट। यस सर। ओके, तो तुम लोग वो इंग्लिश का ABCD यूज करेगा, राइट? अगर वही मेरे को हिंदी में लिखना है तो मैं लिख सकता हूं हिंदी में लिखना है, मतलब तुम्हारा व्हाट्सएप का लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो तुम लोग वहां पे लिखोगे इंग्लिश में, बट उधर पढ़ोगे तो हो जाएगा करण अच्छा स्टूडेंट है करके, ऐसा नहीं। हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिखने के लिए तुमको वो क ख ग यूज करना पड़ेगा, यस सर, राइट? बट श्योर एंड तुम वो इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, वो सेंटेंस का जो बेसिक मीनिंग है वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? उसका जो ये है अल्फाबेट्स है, जैसे इंग्लिश में अपने पास अल्फाबेट्स है ABCD, हिंदी या मराठी में बोलते हो जो उसका 12 खड़ी है, वो लिखने का तरीका चेंज हो जाता है खाली। The same thing is there for your programming language. The logic basically remains same in any of the programming language you take. What changes is the way in which you write and the syntax. That is what is the difference. Okay. तो इसके लिए अगर कभी भी Scilab के इसमें if I give some reference of your C programming और वो पार्ट कवर नहीं हुआ है तो you can tell me at that time only, so I can try to explain you in a different manner. Okay, so we will come back to this Scilab. So Synods is basically a textual file जो हम लोग बोलते हैं TXT फाइल है, जहाँ पे अपने को कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद you have to execute your code. तो कोड एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्ले का बटन प्रेस करना होता है। एग्जीक्यूट मतलब वो प्रोग्राम को रन करेगा, सॉरी पहले
कंपाइल करेगा, उसके बाद रन करेगा। अभी कंपाइल मतलब क्या होता है, वो चेक करेगा कि तुमने वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से उसका सिंटेक्स लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन इन योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज you would have experienced that every sentence has to end with a semicolon, right? Every sentence has to end with a semicolon. Is it true or not? Yes, sir. अगर सेमीकोलन नहीं लिखा तो क्या होता है? Prototype error. तो वो एरर आ जाते हैं, राइट? सो क्यों? क्योंकि राइटिंग अ सेमीकोलन इन योर सी प्रोग्रामिंग इज द सिंटेक्स which has to be followed. अगर वो फॉलो नहीं किया तो वो उधर एरर देगा करके, फाइन। तो वो तुम्हारा कंपाइलेशन का पार्ट है। रन मतलब वो कैलकुलेशन करेगा, सिंटेक्स अगर बराबर है तो जो तुम लोग ने लिखा है उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और तुमको आंसर देगा। नाउ इन योर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि तुम लोग जहां पे कोड लिखता है वो एक अलग जगह है और जहां पे तुमको आंसर आता है वो एक अलग जगह है। दैट इज व्हाट यू से एज एन आउटपुट विंडो or you say the display area or whatever you term it. जहां पे तुम लोग उसका कोड लिखते हो तुम्हारा ब्लू कलर का स्क्रीन होता है, राइट? और जहां पे आंसर आता है वो तुम्हारा ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है। Yes, sir. तो सिमिलर टू दैट, ये जो साइन नोट्स है इट इज द प्लेस वेयर वी विल राइट डाउन आवर कोड, और ये जो कंसोल है दैट इज द प्लेस जहां पे मेरे को उसका आंसर मिलेगा। ठीक है? तो जो साइन नोट्स है वो सी प्रोग्रामिंग के साथ कंपेयर किया तो तुम्हारा ब्लू कलर का जो स्क्रीन है जहां पे तुम लोग को कोड टाइप करता है। Yes, sir. एंड जो कंसोल है दैट इज वेयर आई गेट माय आंसर। ब्लैक कलर का जो स्क्रीन होता है सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट जहां से मिलता है वो वाला पार्ट। ठीक है? नाउ तो टिल दिस द थिंग्स आर क्लियर? Yes, sir. इन योर साइलैब इट इज नॉट नेसेसरी कि साइन नोट्स में ही तुम लोग लिखेगा तो तुमको आंसर मिलेगा, तुम डायरेक्ट कंसोल में भी कर सकते हैं। बट व्हाट हैपेंस, कंसोल इज अ टेम्पररी मेमोरी। ओके, कंसोल इज अ टेम्पररी मेमोरी। यहाँ पे तुम लोग जब तक तुम्हारा वो स्क्रीन चालू है तब तक तुमको वहां पे दिखेगा। एक बार तुमने वो साइलैब को बंद किया तो व्हाटएवर इज देयर इन द कंसोल वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। कंसोल इज अ टेम्पररी मेमोरी whereas साइन नोट्स इज अ sort of a permanent memory. Permanent means तुमने उसको सेव करके रख दिया तो 20 दिन के बाद भी उसको तुम ओपन करो you will get the same thing what you have written, but कंसोल में वैसा नहीं है। ओके, तुम लोग कंसोल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप 2 + 3 आई गेट माय आंसर एज 5, तो ये कंसोल में आ गया। आई कैन राइट 2 × 3, I get the answer as 6. ये मेरा एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया। I can write division 8/9. Okay, so console में भी I can do my calculation, but the only thing is console is a place जहाँ पे तुम्हारा temporary memory होता है, उसको तुम वापस रीयूज नहीं कर सकते। ओके, उसको तुम लोग वापस रीयूज नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू योर कैलकुलेशन पार्ट और योर टू राइट डाउन द प्रोग्राम्स इन योर कंसोल, क्योंकि अगर तुमको बाद में उसको रिट्रीव करना है, ओके, बाद में अगर उसको रिट्रीव करना है तो वो तुम लोग कंसोल से रिट्रीव नहीं कर सकते। हाँ, इफ यू हैव सेव्ड इट इन अ फाइल तो उसको तुम लोग बाद में यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है? तो ये Yes, sir. डिफरेंस है कंसोल का और साइन नोट्स का। सेकेंड थिंग, जस्ट लाइक यू हैव इट इन योर सी लैंग्वेज कि कोई भी प्रोग्राम
लिखना है तो आई हैव टू स्पेसिफाई माय वेरिएबल्स बिफोर यूजिंग देम विथ देयर डेटा टाइप्स, राइट? In your C programming, you are supposed to specify the variables before using them with their data types. वो Scilab में नहीं है. You can use a variable directly without specifying its data type. Okay, you can use a variable without you specifying the data types. उसका data type से वो automatically उसका value के हिसाब से वो लेता है करके. Now see, यहाँ पे if I observe 2 plus 3 gives me the answer as 5, but जो answer लिखा हुआ है you can see it is displayed as 5 point. 5 point मतलब वो जो आंसर आ रहा है वो तुम्हारा फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है. मैंने जब वैल्यूज एंटर किया वो इंटीजर्स था, 2 और 3 दोनों इंटीजर है, बट मेरा जो आंसर आ रहा है वो फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है. वो उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट है साइलैब का, तो वी कैन नॉट चेंज दैट. 2 into 3 अगेन यू कैन सी कि वो 6 पॉइंट में आंसर दे रहे हैं. So it is not like कि 6 के बाद वो फुल स्टॉप है. It is basically 6 point that tells me कि वो एक फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन में वो है. 8/9 we can see कि उसका आंसर है 0.6 times 8 and 9. So how many decimals you are getting after the point? 7 decimals you are getting after the point. ये तुम्हारा बेसिक डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है साइलैब में. राइट साइड पे देखो, यहाँ पे यू कैन सी द वेरिएबल ब्राउजर. आर यू एबल टू सी द वेरिएबल ब्राउजर? यस सर. यहाँ पे अभी मेरा माउस का पॉइंटर है. यस सर. आर यू एबल टू सी द वेरिएबल ब्राउजर का विंडो? यस. नाउ हियर यू कैन सी उसका नाम आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है, उसका टाइप आ रहा है. विजिबिलिटी इज लोकल, दैट यू इग्नोर. तो वेरिएबल का नाम, उसका वैल्यू और उसका टाइप. तो यहाँ पे इट इज ऑलरेडी डबल. डबल मीन्स योर डेसिमल वैल्यू. जैसे तुम लोग का सी में फ्लोट होता है, यहाँ पे वो डबल करके दे रहेगा एज द डेटा टाइप विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट योर रियल कांस्टेंट्स. रियल कांस्टेंट मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना रियल है, वो वाला रियल नहीं. रियल कांस्टेंट मतलब नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट, वो वाला रियल कांस्टेंट. ठीक है. तो ये तुम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. 3 - 9 gives you -6. ये हो गया मेरा बेसिक ऑपरेटर्स. तुम लोग को अगर पावर फाइंड करना है 2⁻³ तो 2 कैप रूट का साइन लिखो और 3 डालो. वो तो लाइक दिस यू कैन हैव एनी ऑफ योर पावर्स. 4⁻⁻1. 4⁻⁻1 is what? 4⁻⁻1 is 1/4. तो 1/4 मतलब उसका आंसर हो जाता है 0.25. ठीक है, उसका आंसर हो जाता है 0.25. दिस मच इज क्लियर. नाउ सी, ये मेरा अभी देखो हमने एडिशन से स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू द साइज ऑफ द विंडो वो मेरा एडिशन ऊपर चलेगा. तो उसको मेरे को अगर व्यू करना है तो उसको मेरे को स्क्रॉल करना पड़ता है, राइट? अभी no need to write down anything at this moment. If I click on this brush, clear console, तो सी जो भी कुछ लिखा था कंसोल में सब क्लियर हो गया और वो मैं बाद वापस से रिट्रीव नहीं कर सकता है. ठीक है, जो भी मैंने कंसोल में लिखा था वो सब क्लियर हो गया. इफ आई क्लिक ऑन दिस क्लियर दिस थिंग, so whatever was written in that console I cannot retrieve back. ठीक है, I cannot retrieve back. That is the reason I said कि ये परमानेंट मेमोरी नहीं है, टेम्पररी मेमोरी है. उसको क्लियर किया तो वो सब चले जाएगा, उसको वापस रिट्रीव नहीं कर सकते. अगर वापस रिट्रीव करना है तो वापस से टाइप करो सब कुछ. बट कितना टाइप करेगा तो स्क्रीन के साइज के हिसाब से जाएगा, तो वापस सब ऊपर नीचे चले जाएगा, तो उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज मच इज क्लियर. यस सर.
Okay. Now, one thing is there. Okay, those who have laptops with you. Okay, those who have laptops with you, you can download this Scilab का software. Okay, or depending on the system, तुम्हारा सिस्टम 32 बिट्स का है कि तुम्हारा सिस्टम 64 बिट्स का है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम यू कैन डाउनलोड दिस Scilab और उसको तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, उसको तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. अगेन आई Sir, रिपीट, it's not showing दो. the all one, sir. It's showing 6.6.1. हाँ, तो मेरा 5.5.2 है, मैंने अपडेट नहीं किया इसके लिए. जो भी है, जो भी तुम्हारा सिस्टम को सपोर्ट करेगा वो तुम लोग सर वहां से दोनों डाउनलोड सेम कर. दोनों सेम ही रहेगा ना? हाँ, सेम ही है, उसमें ये नहीं है मतलब कुछ. ओके सर. खाली ये देख लेना कि तुम्हारा सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, वो मैच कर लेना, बाकी सब चलेगा करके. एंड जिसके पास लैपटॉप्स नहीं है, डोंट वरी, डोंट थिंक कि अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं क्या करूं करके. तो व्हाट यू डू इज यू कैन गो टू योर गूगल का ब्राउजर, वहां पे यू कैन टाइप Scilab Cloud. ठीक है, you can see on the screen. Again I repeat, those who don't have a laptop, nothing to worry about it. Just I am telling with respect to my subject. I am not concerned with the other subjects. मैंने लैपटॉप का नाम लिया, इट डजंट मीन कि यू टेल योर पेरेंट्स कि अभी मेरे को कल का कल लैपटॉप लेके दो करके, राइट. एंड डोंट मीन्स अभी जैसे वो Amazon फ्लिपकार्ट पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, दिवाली सेल, उसमें भी अगर तुम लोग को जरूरत नहीं है तो डोंट प्रेशराइज और डोंट फोर्स योर पेरेंट्स टू बाय यू अ लैपटॉप ऑफ XYZ कॉन्फ़िगरेशन करके. मेरे सब्जेक्ट में लैपटॉप नहीं है तो भी ठीक है, एक मोबाइल फोन है तुम्हारे पास, उस दैट इज मच मोर सफिशिएंट, उससे तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. So this is specifically for those who don't have a laptop or a desktop at their home. So what you can do is just open your Google Chrome का browser, मोबाइल से ओपन करो या किधर से भी ओपन करो, कंप्यूटर से ओपन करो, मोबाइल से ओपन करो, गूगल क्रोम में जाके Scilab Cloud टाइप करो खाली. ठीक है, Scilab Cloud टाइप करो तो you will get a link of this type, cloud.scilab.in. So that is basically cloud on cloud on सर वो Scilab. एडवांस में आता है ऑप्शन. Proceed to cloud.scilab. So when you go to this Scilab on cloud, so you get a page of this kind, जहाँ पे लेफ्ट साइड पे तुम लोग उसका कोड टाइप कर सकते हैं. नीचे यू कैन सी एग्जीक्यूट का बटन है, एग्जीक्यूट पे प्रेस करेगा तो राइट साइड पे तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा. ओके, राइट साइड पे तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा. सी लाइक इफ आई राइट 2 + 3 एग्जीक्यूट, थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है वो एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि बेसिकली इट इज ऑन क्लाउड. तो तुमको जितना जल्दी सिस्टम में आंसर मिलेगा उतना जल्दी यहाँ पे नहीं मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कनेक्टिविटी का स्पीड एंड अदर थिंग्स. सी आई हैव रिटन, तो मेरे को उसका रिजल्ट में देखो, ये मैंने एक स्पेसिफिकली कोड के टाइप में लिखा है. a is a variable which gets the value as 2, b is a variable which gets the value as 3,
C is nothing but A plus B and display C. DISP is for your display. Okay, DISP is for your display. मतलब वो जैसा तुम्हारा C में printf होता है ना, वैसे ही यहाँ पे डिस्प। तो फिर एग्जीक्यूट करो तो राइट साइड पे देखो, यू गेट योर आंसर। A का वैल्यू इज 2, B का वैल्यू इज 3, C का वैल्यू इज 5, और जो 2 बार 5 आ रहा है वो एक तुम्हारा डिस्प स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है। I'll try to bifurcate that. ये डिस्प में मैं लिखूंगा sum is equal to तो मे बी वो क्लाउड में है तो कभी कभी वो आंसर के लिए थोड़ा इश्यू करता है, बट दैट मच इज मैनेजेबल करके। एग्जीक्यूट करने के बाद समटाइम्स यू गेट द आंसर सो क्विकली कि जैसे हम लोग को प्रीवियस केस में मिला था, और अभी 2-3 बार एग्जीक्यूट करने के बाद भी नहीं आ रहा। इट हैपेंस मेनी टाइम्स, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। इट हैपेंस मेनी टाइम्स, इट हैपेंस कि एग्जीक्यूट करने के बाद आंसर नहीं आते। अल्टीमेटली इट्स अ क्लाउड, तो तुम लोग का नेटवर्क का स्पीड, उसका कनेक्टिविटी के हिसाब से दैट हैपेंस मेनी टाइम्स। बट प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन डू इट बिकॉज यू हैव लीजर व्हेन यू प्रैक्टिस, तो दैट इज नॉट एन इश्यू। ठीक है, तो दिस इज व्हाट was the basic things कि if you have a computer, desktop, laptop, तो तुम लोग वो Scilab का डाउनलोड कर सकते हो। You can whatever version you have available that you can use. Only the thing is 64-bit and 32-bit वाला जो तुम्हारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, check that first and accordingly you download your this thing। क्योंकि वो अगर 32 बिट में तुम्हारा 64 बिट काम नहीं करेगा, 64 बिट में 32 बिट काम नहीं करेगा। एंड दोज हु डोंट हैव अ कंप्यूटर दैट इज योर डेस्कटॉप और अ लैपटॉप, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द क्लाउड, Scilab ऑन क्लाउड। तो खाली गूगल ब्राउजर ओपन करो, वहां पे Scilab क्लाउड टाइप करो, तो यू विल गेट दिस थिंग cloud.scilab.in। It is not an HTTPS, that is the reason कि वो पहली बार वहाँ पे वो एडवांस का सेटिंग्स मांग रहा था, बट एक बार हो जाएगा तो उसके बाद आई डोंट थिंक वो हर बार मांगता है करके। उतना तो ट्रूली स्पीकिंग मेरे को भी उसका टेक्निकलिटीज नहीं पता है, बट वो मांगता है तो उधर जाके हम लोग जैसा किया वैसा करेगा तो तुम लोग को आ जाता है आंसर, मतलब ओपन हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी यू हैव अ कंसोल का पार्ट जहाँ पे कोड लिखना है, राइट साइड पे यू आर सपोज टू गेट एन आंसर। एग्जीक्यूट, कोड लिखने के बाद एग्जीक्यूट करो तो यू विल गेट एन आंसर। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट वर्क इन द सेंस वो बहुत टाइम के बाद आंसर देता है करके, बट इट्स ओके, इट इज मैनेजेबल। प्रैक्टिस के लिए तुम लोग उतना कर सकते हैं। ठीक है, I'll just close this Scilab का part. This much is clear.
Yes, sir. Okay. So now what we do is now we go to the formal this thing जहाँ पे हम लोग जाके उसका कोड लिख के साइलैब में कोड लिख के उसका आंसर कैसे लाना है. So for that what I will do is I will go to the Scilab में SciNote जो मैंने ओपन किया था डॉक्यूमेंट. Okay. So now first program would be our calculator. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. ओके आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड. मेरे को अनम्यूट ही करने नहीं दे रहा था. जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट रीशेयर दैट फाइल. Okay, you are able to see the Scilab का file, sorry, Teams का page. Yes, sir. Okay. So this is your console. So we were discussing about the non-executable statement. Non-executable statement you use for writing down some notes कि वो step मेरा क्या represent करता है. तो यहाँ पे Scilab में non-executable statement you can write it using your slash 2 times. C programming में you write your non-executable statement as by using a slash and a star.
right? Something of this kind you use for your C language. स्लैश स्टार, फिर तुम लोग सेंटेंस लिखो वापस से स्टार एंड स्लैश. दैट इज हाउ यू राइट योर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन योर सी लैंग्वेज. बट यहाँ पे 2 बार स्लैश डालना है तो इट बिकम्स अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. So as the name suggests, calculator, so we will be discussing the basic operators of the calculators like addition, multiplication, subtraction, division and power. इतना करेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में करेगा. टुडे वी विल सी हाउ मच वी कैन कवर. तो उसके लिए फर्स्ट क्या करना है, वी विल डिक्लेयर द वेरिएबल्स, वी विल असाइन द वैल्यूज टू द वेरिएबल्स a and b. ठीक है. Now first I will write s equals to a plus b. What does my line number 4 does? Line number 4 basically finds my addition of a and b. Then okay, I'll write sum. Sir, where are you writing? Sign notes में. That notes is not visible. Sir, we can Sir, see your meet team icon. screen is visible. No, sir. एक मिनट. अच्छा, मैंने शायद एंटायर स्क्रीन नहीं व्यू किया. ओके, नाउ इज इट विजिबल? Yes. हाँ, सॉरी, वो शायद मैंने एक के बदले दूसरा स्क्रीन ये शेयर किया था. पूरा स्क्रीन शेयर नहीं किया था, एक पेज शेयर किया था. तो ठीक है, डिफरेंस इज a minus b, so that is my subtraction. I cannot use, see अभी diff लिखा. लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 में कुछ डिफरेंस लग रहा है तुम लोग को? लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5 में कुछ डिफरेंस लग रहा है? कलर अलग है. कलर अलग है. और द थिंग इज कि लाइन नंबर 5 में जो diff लिखा है उसके बाद वो अंडरलाइन होके आ रहा है, जबकि लाइन नंबर 4 में वैसा कुछ भी नहीं आ रहा है. So that diff, that is basically a keyword, means it is a predefined word in your Scilab. तो इसको तुम लोग as a variable यूज नहीं कर सकते. ठीक है, it has a predefined meaning, तो उसको तुम लोग as a variable यूज नहीं कर सकते. तो उसके लिए I use the variable as say d, और sum के लिए I use it as s. ठीक है, जब भी वो तुम्हारा कलर चेंज हो जाएगा या ऐसा अंडरलाइन होके आएगा, देन it will tell you कि वो तुम्हारा कीवर्ड है and you cannot use it as a variable. ठीक है? Yes sir. फिर मेरा मल्टीप्लिकेशन a स्टार b, डिवीजन I will take a upon b क्योंकि दोनों नॉन जीरो है. सर वो हम लोग कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ, चलेगा. कमेंट्स इसके लिए लिख रहा हूँ so that this is the beginning, first lecture है अपना Scilab का. So you should be familiar about the things. इसके लिए वो कमेंट्स लिख रहे हो, otherwise it is not required. Comments in any of the programming language, remember, comments you write for your thing to become simple. Okay, see, at present what we are doing, we are writing a program जिसमें maximum 8 steps, 10 steps है. But when you go to the things like your higher studies or when you go for a job, तो वहां पे जो तुम लोग कोड लिखोगे, तो it will not be so small. It will be containing of pages and pages and pages. So every time it is not
द राइट टेक्निक कि तुमने फर्स्ट पेज में जो स्टेप्स लिखा था वो तुमको 15 दिन के बाद भी याद रहेगा, दो यू आर द वन हु हैव रिटन द होल कोड, बट इट मे हैपन कि यू फॉरगेट कि वो क्यों लिखा था या वो क्या करता है, किसके लिए लिखा था। इसके लिए वो कमेंट्स लिखना इज एडवाइजेबल सो दैट you can retrieve what you have written at a later stage. That is one thing. Second thing, तुम्हारा कोड है और तुमने कमेंट्स नहीं लिखा है तो दूसरे पर्सन के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है उसको डिकोड करने के लिए, राइट? तो अगर when you are working in an organization, when there are 2 or more people working on the same project or working on the same code, तो वहां पे वो कमेंट्स लिखना कंपलसरी हो जाता है सो दैट द अदर पर्सन गेट्स एन आइडिया कि वो चीज क्या कर रहा है करके। बिकॉज यहाँ पे तो सी हम लोग भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिख रहे हैं ना, हम लोग कोई सब रूटीन यूज कर रहे हैं ना हम लोग कोई फंक्शंस यूज कर रहे हैं करके, बट रियल मींस प्रैक्टिकल लाइफ में दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, और हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये अपना फर्स्ट लेक्चर है साइलैब का। इट इज न्यू फॉर एवरीवन ऑफ यू। आफ्टर 2 or 3 सेशंस यू विल आल्सो एक्सपीरियंस कि हम लोग भी नहीं लिख रहे करके वो कमेंट्स क्या है करके। ओके, ओके सर। so this is for your power, a raised to b, a कैप रूट का साइन और b, ये हो गया पावर। तो ये मेरे 5 बेसिक ऑपरेशंस हो गए कैलकुलेटर के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर। अभी ये मेरा कैलकुलेशन पार्ट हो गया, अभी मेरे को सबको डिस्प्ले करना है। एंड तो डिस्प्ले करने के लिए एज आई सेड वी हैव अ फंक्शन दैट इज नोन एज डिस्प। जैसा तुम लोग का प्रिंटफ होता है सी प्रोग्रामिंग में, वैसा यहाँ पे होता है डिस्प। This is one thing. Second thing, see, as I told you in the beginning, okay, we will not define the variable before its used, just like what you do it in your C language. यहाँ पे वेरिएबल को प्री डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? वेरिएबल को प्री डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, ना ही उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करने का जरूरत है करके। तुम लोग डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज करो, ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप आ जाता है उसमें, ठीक है? ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप आ जाता है। एंड जस्ट लाइक यू डू इट इन योर सी लैंग्वेज, देयर इज नो सेमीकोलन, यू कैन चेक, राइट? पुटिंग अ सेमीकोलन इज नॉट कंपल्सरी इन योर साइलैब, ठीक है? Now I will use my disp statement. This statement is exactly similar to your printf. जो सिंटेक्स तुम लोग printf के लिए यूज करते हैं वही सिंटेक्स यहाँ पे यूज करेगा, except that semicolon at the end of the statement. Okay, I will write this. I will open a bracket. See, यहाँ पे और एक चीज तुम लोग को ऑब्जर्व करना है, मैंने खाली ओपनिंग ब्रैकेट डाला तो मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। दिस इज व्हाट इज द व्हाट यू कैन से खासियत होती है साइलैब की। खासियत यही है कि तुम लोग जो भी टाइप का ब्रैकेट ओपन करोगे उसका क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो तुम्हारा सी लैंग्वेज में नहीं आता है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस मेनी टाइम्स यू गेट एन एरर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट मैच नहीं करता है। 4 ब्रैकेट्स ओपन हुआ, 3 ब्रैकेट्स क्लोज हो गया तो सिंटेक्स एरर मिलेगा। तो दैट थिंग कैन बी अवॉइडेड हियर। तो उसके लिए यू हैव टू बी, सी, एवरीथिंग कम्स विथ इट्स बेनिफिट एंड इट्स ड्रॉबैक। जो भी कुछ है लाइफ में है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किधर भी है, उसका बेनिफिट्स रहेगा तो उसका ड्रॉबैक्स भी होता है साथ में। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि ओपन ब्रैकेट के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाता है, तो इट इज अ बेनिफिट, प्लस पॉइंट है। क्योंकि मैं इन अ हरी इफ आई फॉरगेट टू क्लोज द ब्रैकेट, वो मेरे को एरर नहीं देगा। बट उसका ड्रॉबैक क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट्स का मिसमैच नहीं होगा बट मिस पोजीशन हो सकता है। मतलब मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना था एंड में, वो किधर क्लोज हो गया बीच में,
तो मिस मैचिंग हो सकता है फॉर क्लोजिंग द ब्रैकेट, so that you have to take care, you have to overcome to that. Okay, so disk में I will put a quotation. कोटेशन के लिए भी वैसा ही है, मैंने ओपनिंग कोटेशन डाला तो क्लोजिंग कोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है करके, ठीक है। ओपनिंग कोटेशन डाला तो क्लोजिंग कोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता है। तो आई विल राइट डाउन द मैसेज, तो मेरे को लिखना है सम इक्वल्स टू, आई विल क्लोज द कोटेशन जो ऑटोमेटिकली हो गया, पुट अ सेमीकोलन एंड आई राइट एस। जो भी मेरा वेरिएबल है उसको मेरे को कोटेशन के बाहर लिखना है, ठीक है। जो भी मेरा वेरिएबल है उसको मेरे को कोटेशन से बाहर लिखना है, राइट। सो नाउ व्हाट यू कैन सी, नाउ इतना लिख के हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेगा कि मेरा सम डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कैसा डिस्प्ले हो रहा है। तो ये लिखने के बाद आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस सेव एंड एग्जीक्यूट, क्योंकि बिना सेव किए वो तुमको एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। सी यू कैन सी देयर आर टू बटन्स, एक खाली एग्जीक्यूट का है और एक तुम्हारा सेव एंड एग्जीक्यूट का है। तो वो बिना सेव किए तुमको एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। यू कैन चेक, अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे को मैसेज दे रहा है, यू नीड टू सेव योर मॉडिफिकेशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग। तो ऐसे सेव एंड एग्जीक्यूट, तो मेरे को सेव एंड एग्जीक्यूट, तो मेरे को नाम पूछेगा वो, I put Scilab 2120. Now I just executed, तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया रहेगा। यू कैन सी इन द कंसोल। तो अभी मेरा फाइल में एरर है, लाइन नंबर 9 पे एरर है, वेटिंग फॉर द राइट पैरेंथेसिस। ओके, तो मेरा एरर है तो मेरे को एरर दिखा रहा है करके। लाइन नंबर 9 मेरा डिस्क था। Every time it will ask you to save. I'll just clear this history. Sir, what if we use double times any variable? Double? What if we use a variable double times, sir? In a C, Two times. it gives error. Yes, sir. Just a second. Just a second. Just. Using the variable two times you are asking. Same variable. Hello? Yes, sir. It will overwrite ना, जो बाद में लिखा है वो ओवरराइट कर देगा, उसको प्रीवियस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा वो। Okay, sir. जैसे तुम्हारा बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वैसे ही होगा यहाँ पे भी। इसमें एरर क्यों दिखा रहा है? राइट पैरेंथेसिस, ब्रैकेट को डालते हैं हम लोग। एक ओके, और मेरे को बिना टेक्स्ट मैसेज मेरे को आंसर दे रहा है, राइट। सी आई एम गेटिंग द आंसर एज 14, बट वो बिना मैसेज के दे रहे हैं। नाउ अगर मेरे को मैसेज के साथ करना है
ओके, इफ आई राइट टू सेपरेट डिस्प स्टेटमेंट्स, वो मेरे को आंसर दे रहा है. आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एक में क्यों नहीं आ रहा है. ओके, so at present we will continue in this format only. वो आता है एक में भी. अभी एक अलग अलग डिस्प स्टेटमेंट लिखा तो अपना टेक्स्ट ऊपर आ रहा है और आंसर नीचे आ रहा है. एक साथ लिखेगा तो जनरली क्या होता है, आंसर ऊपर आता है और मैसेज नीचे आता है करके. बट आई जस्ट चेक आउट आफ्टर द लेक्चर कि वो क्यों नहीं दिखा रहा है करके. बट एट प्रेजेंट वी विल यूज सेपरेट स्टेटमेंट्स फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेजेस. इट्स ओके, थोड़ा काम, मतलब वी विल हैव टू राइट डाउन मोर स्टेटमेंट्स, but we will get the answer. So you can see difference हुआ. उसके बाद अभी प्रोडक्ट, you can see मैं खाली ओपन ब्रैकेट डाल रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है करके. सॉरी, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ रहा है और वो तुम लोग को हाईलाइट भी करके दिखा रहा है. See, now if I go to this bracket, you can see that small rectangular box, रेड कलर का रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं. लाइन नंबर 15 में जस्ट सी दैट रेक्टेंगुलर बॉक्स बेसिकली इंडिकेट्स कि जो ब्रैकेट क्लोज हुआ उसका ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा था. ओके, तो जो मिसमैचिंग ऑफ ब्रैकेट्स और मिसमैचिंग ऑफ पोजीशंस यू कैन अवॉइड if you concentrate like this. If you are using Excel, I'm not sure कि कितना दिन तुम लोग ने यूज किया है, बट याद रखो कभी भी जब एक्सेल यूज करोगे ना तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो ब्रैकेट का कलर है ना वो अलग हो जाता है करके. एक ब्रैकेट ओपन किया तो ब्लैक कलर, सेकेंड ब्रैकेट ओपन किया तो ग्रीन कलर, पिंक कलर, वैसा अलग अलग कलर्स के ब्रैकेट्स आ जाते हैं अगर तुम लोग एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारा ब्रैकेट्स यूज करते हो तो दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि मेरा ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट क्लोज किया, उसका ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा था करके. सिमिलर टू दैट यहाँ पे वो ये रेक्टेंगुलर नोटिफिकेशन टाइप तुमको दे रहा है विच बेसिकली टेल्स कि ये मेरा जो ब्रैकेट क्लोज हुआ वो किस, उसका ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा था करके. हेलो सर. यस सर ये जो स्काईलैब है सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जस्ट ऐप है टू मेक कैलकुलेशंस इजियर? नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अभी हम लोग जो ये कर रहे हैं वो बेसिक स्टार्टिंग है ना, इसके लिए हम लोग बेसिक ऑपरेटर्स का सम कर रहे हैं. उसके बाद वी विल गो विद द डिफरेंट थिंग्स. ओके सर. क्योंकि इफ आई डायरेक्टली स्टार्ट विद सम कॉम्प्लिकेटेड वन, वो तुम लोग को भी बाउंसर जाएगा और मेरे को भी प्रॉब्लम होगा करके, राइट. सो दैट इज व्हाई वी डू विद अ सिंपल थिंग. ऐसे टोल्ड यू कि पहले बेस डेवलप करना है. एक बार बेस डेवलप हो गया तो उसके बाद हम लोग बाकी सब चीज फटाफट कर सकते हैं करके. ओके, तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम. इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करेगा एंड वी कैन सी दिस इज व्हाट इज द आंसर. एंड यू कैन सी द वैल्यूज आल्सो. 6 और 8 है तो 6⁸ भी वो कितना जल्दी कैलकुलेट करके दिखा रहे. सी कितना वो 16,79,616. राइट, तो ये मेरा आंसर आ गया कंसोल का पार्ट में. अगेन आई रिपीट, वी आर यूजिंग टू डिफरेंट डिस्प्ले स्टेटमेंट्स. तो इसके लिए वो पहले वो मैसेज प्रिंट करे जो ऑर्डर में डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखा हुआ है अपना. यू कैन सी हियर. हेलो सर. सर उसका ये प्रैक्टिकल का अपने को कुछ बुक बनाना पड़ेगा? प्रैक्टिकल का जर्नल बनाना पड़ेगा ना.
ओके सर, तो उसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, यही सब वो मैं की बताऊंगा ना, मतलब? जब जर्नल बनाना है तब उसका इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, ओके सर। क्योंकि इसका एग्जाम भी अलग से होगा तुम लोग का 50 मार्क्स का। हाँ अच्छा, अभी तुमने पूछ लिया तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ तुम्हारा एग्जाम रिलेटेड थिंग्स। 100 मार्क्स का तुम्हारा थियरी एग्जाम होगा और 50 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। वो और 100 मार्क्स में कैसा है, 60-40 है। 60 मार्क्स का एक एग्जाम होगा विच मे बी ऑनलाइन ऑफलाइन, दैट इज क्वेश्चन मार्क जो बाद में क्लियर होगा। बट 60 मार्क का एक पेपर होगा। 40 मार्क्स विल बी योर इंटरनल्स, दैट विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स एंड असाइनमेंट्स होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो जो असाइनमेंट्स है वो तुम लोग का टीम्स में मैं डाल दूंगा मे बी बिफोर दिवाली ब्रेक, सो दैट इन द दिवाली ब्रेक यू कैन कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एंड यू कैन सबमिट। असाइनमेंट तो सबमिट करना है, वो भी ऑनलाइन करना है, तुमको टीम्स में ही करना है। आई विल सेंड द क्वेश्चंस, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज solve the questions in your paper, any paper whichever is available with you, blank paper, ruled paper, नोटबुक में लिखेगा तो भी चलेगा, आगे पीछे लिखो, सॉल्व करो सम्स, उसका फोटोज निकल के एक पीडीएफ बनाओ और टीम्स में जहाँ पे वो असाइनमेंट अपलोड, मतलब वो डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, वहीं पे तुम लोग को तुम्हारा असाइनमेंट अपलोड करना है और वहां पे तुमको एक टर्न इन का ऑप्शन आएगा, वो टर्न इन करना है। टर्न इन मींस यू हैव सबमिटेड योर असाइनमेंट प्रॉपर्ली। खाली अपलोड कर देगा इट डजंट मीन कि तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट हो गया करके। ठीक है, तो 20 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, रिमेनिंग 20 मार्क्स विल बी फॉर योर असाइनमेंट, 1 असाइनमेंट 2 असाइनमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड अदर थिंग्स। ठीक है, एक 60 मार्क्स का पेपर होगा और प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी फॉर 50 मार्क्स। वो 50 मार्क्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है 50 मार्क्स का, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो दैट मींस तुम्हारा डिस्क्रीट मैथ्स के लिए एक 60 मार्क्स का एग्जाम होगा, एक 40 मार्क्स का इंटरनल होगा और एक 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। पासिंग इन ऑल द 3 एग्जाम्स इज रिक्वायर्ड, सेपरेट पासिंग इन ऑल द 3 एग्जाम्स इज रिक्वायर्ड। ओके, दैट मींस 60 में से मिनिमम तुमको 24 लाना है, 50 में से मिनिमम 20 लाना है और 40 में से मिनिमम 16 दिस इज द मिनिमम मार्क्स विच यू आर सपोज टू स्कोर। किसी एक में भी अगर तुम लोग फेल होता है, सब अज्यूम लाइक 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो वो एक हेड हो गया तुम्हारा। 40 में फेल हो गया तो पूरा 100 में फेल होता है, वो भी याद रखो तुम। ठीक है, 50 में फेल होगा तो खाली प्रैक्टिकल कंपोनेंट में ही फेल होता है, बट 40 में या 60 में फेल हुआ तो पूरा पेपर में यू आर कंसिडर्ड टू बी फेल, मतलब वो पूरा 100 मार्क्स में तुम्हारा फेल काउंट होता है। रिलेटेड टू योर केटी एग्जाम तुमको दोनों वापस नहीं देना है, तुमको वही देना है जिसमें तुम लोग फेल हुआ है, बट फॉर योर रिजल्ट कैलकुलेशन पर्पस वो पूरा सब्जेक्ट में तुम लोग फेल दिखाएगा करके, तुम लोग को फेल दिखाए कंसीडर किया जाएगा। फाइन, so as and when other things related to your exams are there, I think Sudha madam will tell you, और मेरे को कुछ अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा करके। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जर्नल में क्या लिखना है, कैसे जर्नल बनाना है, दैट आल्सो आई विल टेल यू। फाइन, ओके सर। ओके, और कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं जाता हूँ वो सम पे। नहीं सर, दैट्स ऑल। Okay. Fine. So this is what is our program. You can check, or this is what is the answer. ठीक है? So if you want, you can take a screenshot of this. ये पहला प्रोग्राम है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो. So whatever basic things are there, we can means you can refer the things later on.
Yes, done. You have taken a screenshot. Okay. So I will erase this. And now we will discuss some of the inbuilt functions which you can use. So first will be for the square root. See, this is what I get. For finding the square root, we can use the function sqrt. Okay, for finding the square root, we can use the function sqrt. Sqrt of a will give me the square root of a. So here I can write gives square root of a. Okay. So sqrt is the function which gives us the square root of a. Then say we will go for absolute value function. That is my ABS. So you can see अभी वहां पे मैंने स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक ही प्रोग्राम में लिखा है, तो मेरे को स्क्वायर रूट का भी आंसर वापस से आ रहा है. So for finding the square root, we use the function sqrt. For finding the absolute value, we use the function abs. Okay, we use the function abs for finding the absolute value, and we use the function sqrt for finding the square root. Most of the functions which you are using in your C language, same functions will be used here. Okay. Now see, if I take a to be -9, मेरा नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं आता है ना, बट यहाँ पे आ रहा है. See, I'll just clear this console. Now I run this program. Now see, मेरा स्क्वायर रूट ऑफ a क्या था, मेरा -9 था, तो यहाँ पे मेरे को आंसर आते हैं 3i. जनरली नेगेटिव नंबर्स के लिए कैलकुलेटर में भी तुम लोग चेक करेगा तो तुमको आंसर नहीं मिलेगा. लाइक इफ यू हैव नॉर्मल 8 डिजिट और 10 डिजिट का कैलकुलेटर, यू टेक अ नेगेटिव नंबर और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, यू विल बी गेटिंग एन आंसर, बट लेफ्ट हैंड साइड पे उधर स्क्रीन पे ई करके आता है. हैव यू ऑब्जर्व दैट एनी टाइम? आई विल चेक लैपटॉप में क्या दिखाते है वो. See, यहाँ पे भी, are you able to see the calculator? If I go for -9 and I go for the square root, you can see it gives me invalid input, because ये सब कैलकुलेटर जो है वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करता है. जैसे नॉर्मल 10 डिजिट का कैलकुलेटर होगा तो तुमको आंसर देगा, बट लेफ्ट हैंड साइड पे तुमको ई करके दिखाता है वो. दैट ई बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि वहां पे कुछ तो एरर है करके. बट साइलैब में इफ यू टेक नेगेटिव नंबर्स तो तुमको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करके देगा.
क्योंकि ये मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है और नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट होता है, खाली इतना है कि वो इमेजिनरी नंबर्स में जाता है करके। ओके, वो इमेजिनरी नंबर्स में जाता है, इसके लिए तुमको वहां पे वो इमेजिनरी नंबर दिखाएगा। वेरएज नॉर्मल कैलकुलेटर में तुमको एरर आएगा, या तो आंसर मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ई लिख के आएगा, बिकॉज दे आर नॉट मैथमेटिकली सो accurate for finding the negative numbers ka square root, but this is a mathematical software, so you get the answer as 3i. Okay, so you can take the screenshot of this too also, this program also, square root and your ABS, that is absolute value function, and SQRT. ABS gives you the absolute value function, SQRT will find out the square root of the number a. यहाँ पे there is no need to specify कि it finds out the square root of the positive number. Negative number रहेगा तो भी वो उसका square root find करके देगा तुमको, just like what we have seen in the example. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो आंसर का पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, तो ये आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? यस सर। ओके, so SQRT हो गया, ABS हो गया. I'll just delete this. Now what we do is remainder. To find the remainder, A equals to say 34, B equals to say 6. यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए वी यूज द फंक्शन मॉडुलो। ओके, मॉडुलो वर्ड लिखना है, इट विल गिव अस द रिमाइंडर व्हेन A is divided by B. Okay, it gives us the remainder when A is divided by B. So remainder equals to C. इसको सेव किया और उसको रन किया. We'll go to the console part. I'm getting an error. So error आया. Can anyone tell कि क्यों error आया? डबल इन्वर्टेड कॉमा में रिमाइंडर को कोटेशन मैसेज है ना वो, तो उसको हम लोग ने कोटेशन में इंक्लूड नहीं किया, इसके लिए एरर आ रहा था। वो कोटेशन डाला, सेव किया और अगेन आई कम एग्जीक्यूट। नाउ वी कैन सी रिमाइंडर इज 4। क्या था मेरा नंबर्स? 34 एंड 6। तो 34 को 6 से डिवाइड करेगा तो आई गेट द रिमाइंडर एज 4. So modulo is a function which gives me the remainder when the number A is divided by B. Okay, modulo is the function which gives me the
remainder when A is divided by B. Right? Is this clear? So you can take a screenshot of this also, modulo function ka. Or wait, we will do one more thing. Floor और ceiling कर लेते हैं quickly. उसके बाद तुम लोग साथ में स्क्रीनशॉट ले लो. Okay, so I'll I'll clear this. Wait, हम मैसेज भी डाल देते हैं. Okay, floor is remainder is 4. Okay, I'll display the numbers also, so it will be easy for us. Display 8. Fine. So my A is 34, B is 6. Remainder when 34 is divided by 6 gives me the answer as 4. Floor basically 34 divided by 6. 34 divided by 6 is what? 5 point something, right? 34 divided by 6 is 5 point something. So mera floor, I think this floor and ceiling we had discussed right during the lectures. So it gives me the largest integer less than or equal to x. So मेरा floor आता है 34 divided by 6 का floor is 6 because it gives me 5 point something as the value of the fraction. Ceiling आता है मेरा 6 because it gives you the large smallest integer greater than or equal to x. Okay, so floor can also be used for finding the quotient. Okay, floor can also be used for finding the quotient when A is divided by B. Again, I repeat, floor function can also be used for finding the quotient when A is divided by B. So you can take a screenshot of this. We have discussed 3 functions in this. One is your modulo, which helps us to gets the remainder, then floor and ceiling function. Floor also helps us to find the quotient when A is divided by B. Okay, again I repeat, floor function helps us to find out the quotient when A is divided by B. I hope this much is fine. You have taken a screenshot of this? Yes, sir. Okay, आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो.
Clear? So can you repeat what is floor and ceiling? Floor gives me mathematically, if you consider your floor, it will give me the largest integer less than or equal to x. Floor gives me the largest integer less than or equals to x. तो यहाँ पे मैंने floor में a upon b लिखा है, तो a upon b मतलब 34/6. 34/6 का आंसर आता है मेरे को 5 point something, right? Yes, sir. So 5 point something, 5.6 or 5.7, whatever that number turns out to be, which is not an integer. तो उससे छोटा वाला इंटीजर्स कौन सा है? 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन. बट वो सब में बड़ा वाला कौन सा है? सब में बड़ा वाला है 5. तो फ्लोर में मेरे को मिलता है 5 एंड सीलिंग में आई गेट 5 point something. तो उससे बड़े वाले इंटीजर्स कौन से हैं? 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन. बट वो सब में से छोटा कौन सा है? 6. So floor gives me the largest integer less than or equals to x. Ceiling gives me the smallest integer greater than or equal to x. Okay. And this floor function can also be used for finding the quotient when the number a is divided by b. Fine? Yes, sir. Thank you. Okay. So we will stop for the day. Now we will. Sorry.